Have you written this table? Made this table, everybody? So for people, every, everyone, yeah, everybody. For things, everything. For places, everywhere. So where jab bhi hoga, it is for a place. And a place which we are not sure of because we are doing indefinite pronouns. For people, we use either everybody or everyone. And for things, we use everything. Similarly, this thing is used for all of these. Every, then something, anything, nothing. Okay? And where is also used for all these words. Everywhere, somewhere, anywhere, nowhere. Okay? And then the only thing in people, there are two things which can be used. Everyone, everybody. Someone, somebody. Anyone, anybody. No one, nobody. Have you all written it down? Made this table? और ये ध्यान से याद रख के करना है. Okay? Have you all made this table? Rishita, Furkan, Ashutosh, tell me. Or are you still making it? सिर्फ आरव ने लिखा है कि टेबल हो गया. What about Ashutosh, Furkan and Rishita? Have you completed the table? बता ही नहीं रहे तीनों बच्चे. They've been making the table. Okay, Rishita has completed. What about Furkan and Ashutosh? Completed this table? And ये समझ आ गया ना? You have to remember. अभी नहीं complete हुआ. क्यों? Why so slow? Ashutosh? इतना slow क्यों हो गए? You don't have to be this slow in class. How much is left? Oh, 4. Don't fall ill, Arav. Don't cough like this. Okay, mute yourself. Mute yourself. Good boy. Oof. Pani piyo. Go and have water. Okay, we shall scroll down a little now. How much? Can I scroll down till here, Ashutosh? Yes, ma'am. Okay, now read this first. Read this. Did you know? We can use indefinite pronouns with every positive, negative, and question sentences. Okay, stop. So the every में कौन सा आता है? Everybody, everyone, everything and everywhere. All these can be used in positive, negative and question sentences. Okay? Furkan, do you know what are positive sentences, what are negative sentences and what are question sentences? Furkan, your turn. बताओ जल्दी से. Do you remember what are positive sentences, what are negative sentences and what are question sentences? No. Sentences की बात कर रही हूँ. Mute. ऋषिता से पूछते हैं. Mute. Rishita, do you remember what are positive sentences, negative sentences and question sentences? Negative sentences में not, do not, does not afterwards happen. Okay, negative में when no बोल रहे हो. So not वाले sentences, not sentence. Right. Positive में क्या होता है? Yes. हाँ, yes वाले. जब हम कहते हैं कुछ किया या कर रहे हैं तो वो सारे पॉजिटिव होते हैं तो हम yes sentences बोलते हैं उनको.
मैं आप लोगों की भाषा में लिख रही हूँ. ओके. एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस, फुरकान, जिसमें क्वेश्चंस पूछते हैं. व्हेन वी आर आस्किंग वाले क्वेश्चन सेंटेंसेस, जिसमें हम कुछ पूछते हैं, जिनमें हम कहते हैं यस समथिंग इज डन, वो यस सेंटेंसेस हैं. जिनमें हम कहते हैं नो समथिंग इज नॉट डन, वो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं. क्वेश्चन में जब हम व्हेन वी आस्क समथिंग, व्हाट हैव यू डन, हु हैज डन, तो वो सारे क्वेश्चन सेंटेंसेस या उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं. तो ये तीनों सेंटेंसेस में, so these are types of sentences. This we have done earlier also. Types of sentences. Okay. तो every जो है indefinite pronoun, every के साथ चाहे everyone हो, everybody हो, चाहे every dash मैं लिख रही हूँ क्योंकि इसके साथ में कुछ भी हो सकता है. everyone हो सकता है, everybody हो सकता है, everything हो सकता है, everywhere हो सकता है. Can be used in all three types of sentences. तो तीनों, हम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी एवरी वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं, यस सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं और आस्किंग सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं. पहली बात. सेकंड, ऋषिता, रीड द सेकंड लाइन. With some and no, we can only use them in positive sentences. ओके. तो ओनली इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. अगर हम सम और नो, अभी हमने ये टेबल बनाया, सो सम, समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर, नो वन, नोबडी, नथिंग, नोवेयर. All these indefinite pronouns can be used only in positive sentences. तो easy हो गया. दो चीजें हमारी सॉल्व हो गई. सो अभी हमने एक ये लिखा था, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, indefinite pronouns. Every can be used in all three types of sentences. सम डैश कर रही हूँ क्योंकि सम के साथ भी somebody, someone, somewhere, something, right? सम एंड नो डैश लिख रही हूँ, nobody, no one, nowhere, nothing can be used only in positive sentences. So ये याद रखने वाली चीजें हैं. ओके. And then last वाला रह गया. Arav, read the last one. Read the last one. We can use. We can only use any in negative sentences and questions. तो अब जो आस्किंग सेंटेंसेस हैं या नेगेटिव, मतलब नॉट वाले सेंटेंसेस या नो वाले सेंटेंसेस एंड who, what, where, they वाले sentences में we use only any. उसमें हम everywhere वगैरह, तो every तो सब में हो सकता है यूज, और every के साथ साथ positive sentences में some और no वाले भी हो सकते हैं, और every के साथ positive, negative और question sentences में any और any यूज हो सकता है, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में. तो एवरी तो हर एक में ही कर सकते हैं, मगर सम और नो सिर्फ पॉजिटिव में करेंगे और एनी हम सिर्फ नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस में करेंगे. तो वो भी लिख लो. तो हम कहेंगे एनी. अब एनी के साथ भी क्या हो सकता है? सब कुछ. एनीबडी, एनीवन, एनीवेयर, एनीथिंग कैन बी यूज्ड इन question and negative sentences. Negative sentences, right? या positive sentences? Negative sentences. Yes, very good.
तो लिख लो सब लोग, फिर हम बस अब अगर हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आ गई, हमें ये भी पता है कौन सा, तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब हमें मालूम है ये सारे हमारे, इसके अलावा भी हमने पिछली बार वो किए थे इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे ऑल, बोथ, नीदर, ईदर, मगर ये 3 हमने अभी किए हैं, तो इसकी अभी हम पहले एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो नाउ आशुतोष, रीड इट। Of, of activity 1, read the text. Find the indefinite pronouns and put them in the table below. A fun day out. Last Saturday, Tom had a great idea. He said, "Let's go somewhere fun today." Everyone in the group was excited, but we didn't know where to go. Let's try the new adventure park, Rita said. So we packed everything we needed and left. Full stop. Wait. So Greta said, this is not Greta, Greta. What is it? Greta. Very good. So now, did you understand this paragraph? समझ आया? Ma'am. What did you understand? Ma'am. कि लास्ट सैटरडे टॉम के पास एक बहुत बढ़िया आइडिया था। उसने कहा कि कहीं जाते हैं मस्ती करने के लिए। तो सारे लोग ग्रुप में बहुत एक्साइटेड थे, पर किसी को नहीं पता था कि किधर जाना है। तो ग्रेटा ने कहा कि हम एडवेंचर पार्क को ट्राई करते हैं। तो जो भी उनके पास था और जो उन्हें चाहिए था वो उन्होंने पैक करा और निकल गए एंड लेफ्ट। कहाँ के लिए? एडवेंचर पार्क के लिए। वेरी नाइस, यू अंडरस्टूड। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? अब आपने क्या करना है इस पैराग्राफ में से? व्हाट डू यू हैव टू डू? फाइंड द indefinite pronouns and put them in the table. हाँ, वेरी गुड। नहीं, अभी आपकी टर्न आएगी, अभी कुछ मत बोलो। तो लेट आशुतोष टेल मी which are the indefinite pronouns in this paragraph. बताओ, which are the indefinite pronouns? कोई नहीं मिला आपको अभी तक? मिल गया। ओके, वेट। तो आप ऐसे टेबल बनाओ तब तक, वैसे भी सबने टेबल बनाना है अपनी कॉपी में। बनाओ टेबल, ऐसे टेबल बनाना है जैसे इसमें बना हुआ है, जब तक उसको मिलता है। आपको अगर मिल गया है तो आप लिखो, ये लिखो, बनाओ ऐसे। पीपल, थिंग्स, प्लेसेस। आज वारेनियम नहीं आया। पीपल, थिंग्स, प्लेसेस। और फिर बताओ इसमें, इस पैराग्राफ में कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउंस आशुतोष? मैम इसमें इंडेफिनिट है। बताओ बताओ। जस्ट मैम समवेयर। Somewhere, let's go somewhere fun today. और वेरी गुड, ठीक बोल रहे हो। अपना टेबल देखो, उसमें हमने कौन से लिखे हुए हैं। आगे पढ़ो।
Everyone in the group was excited, but we didn't know where to go. So which one in this sentence? मैम People का कौन सा होता है? यस मैम People का है इसमें एक indefinite pronoun. कौन सा है? पीपल People का कौन सा है? सभी ग्रुप में. चलो ऋषिता बताएगी. चलो म्यूट करो. ऋषिता बताओ. नहीं हाँ एवरीथिंग एवरीथिंग है. एक और भी है. ये तो थिंग का. अभी मैं पूछती हूँ आपसे कौन सा कहाँ लिखना है. एक और भी है. नो वन कहाँ पे लिखा है नो वन? नो वन तो लिखा ही नहीं. सॉरी एवरीवन. हाँ एवरीवन. अब मुझे बताओ समवेयर थिंग्स में लिखना है पीपल में या प्लेसेस में? मैम प्लेसेस. वेरी गुड. तो यहाँ पे हम समवेयर लिखेंगे. इतना टाइम क्यों लगा? कुछ और आप सोच रहे थे? समवेयर. ओके. एवरीवन किस में लिखना है? पीपल में या थिंग्स में? मैम पीपल. ओके. सब लोग लिखते जाओ अपने टेबल में. एवरीवन. थिंग्स में क्या लिख? और तीसरा एवरीथिंग किस में लिखना है? उसमें तो थे ही थिंग. हाँ तो एवरीथिंग. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. फुरकान रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. पढ़ो. सब लोग लिखते भी जाओ और ये फुरकान पढ़ो. Read it. When we read it, Furqan. When we Arrived at the park. मतलब जब हम पार्क पहुंचे. Arrived. फिर से बोलो arrived. When we arrived at the park. आगे बोलो. There was something special in the air. There were rides, games and food stands everywhere. बस इतने पे रुक जाओ. इधर ही रुक जाओ. इधर ही रुक जाओ. अब मेरे को ये बताओ ये समझ आया क्या है इसका मीनिंग? बोलो. When we arrived at the park, there was something special in the air. क्या मतलब हुआ? समथिंग स्पेशल इन द एयर मतलब बड़े कुछ खुशी का वातावरण. कुछ अलग सा ही वातावरण लग रहा था. है ना? जब हम पार्क वहां पहुंचे. कौन से पार्क में? एडवेंचर पार्क में. हाँ अभी आरव आई विल कम टू यू. हाँ फिर उसके बाद उधर था क्या क्या? देयर वर. हाँ और राइड्स थी. राइड्स क्या होते हैं? झूले और गेम्स. राइट. अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं? काम तो हमको वो करना है. समझना तो है. साथ में काम ये करना है कि हमें पता हो कि कौन से हैं. Everywhere something. वेरी गुड. तो कहाँ पे लिखूं एवरीवेयर और समथिंग कहाँ पे लिखूं? किस वाले कॉलम में लिखूं? यहाँ यहाँ या यहाँ? हाँ समथिंग कहाँ पे लिखूं? पीपल के नीचे, थिंग्स के नीचे या प्लेसेस के नीचे? बोलो. समथिंग कहाँ लिखूं? Something things. ओके लिखो आप लोग भी. समथिंग. हाँ ये मेरे से लिखा नहीं जाता है इस वाले बोर्ड पे. एवरीवेयर कहाँ पे? Place. प्लेसेस. वेरी गुड. समथिंग एंड एवरीवेयर हियर. सब लोग लिख रहे हैं ना अपने सारे? तो ये सेकंड लाइन आएगी. वेरी गुड. नेक्स्ट ऋषिता रीड द थर्ड सेंटेंस फ्रॉम हियर. टॉम. Tried. पढ़ो. And I tried the roller coaster.
But now else one. अरे नो, पूरा वर्ड पढ़ो. Nobody else. हाँ. Nobody else wanted to eat. टू. Wanted to go on it because they were too scared. आफ्टर पढ़ो. After the ride, we went to find something to eat. बस स्टॉप. बस दो सेंटेंसेस सबके. सो Tom and I tried the roller coaster, but nobody else wanted to go on it because they were too scared. What does it mean? कि मैंने और टॉम ने क्या ट्राई किया? रोलर कोस्टर. इट इज अ राइड जिससे ऊपर नीचे जाती है, बहुत डरावनी होती है. But nobody else wanted to go on it because they were scared, too scared. मतलब they were very afraid. After the ride, we went to find somewhere to eat. Yes, बेटे. मैम मेरे को अभी जाना है, तो आप ये भेज सकती है? ये तो क्लासरूम में होगा ही होगा. You have to complete it yourself. इसमें और भी exercises हैं. You should complete them also. And जहाँ academy में जा रहे हो उनसे बात करो, अगर 5:30 तक कर सकते हैं वो. ठीक है? वो भी बात करके आ जाना. ओके, बट यू शुड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. आगे भी होगी एक्सरसाइज, होमवर्क मैं भेजूंगी. ओके, बाय. यस ऋषिता. ओके, बाय. आफ्टर द राइड वी वेंट समवेयर टू ईट. ओके, बताओ इसमें कौन से हैं? तो उसके राइड्स लेने के बाद हम कहीं पे खाना खाने गए. वहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी थे, तो हम जा सकते थे. Now tell me which are the indefinite pronouns in these sentences. Indefinite pronouns. बताओ ऋषिता. पूरे अगर हम इस पैसेज में देखेंगे बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, पर अभी हमारा फोकस इज ऑन इनडेफिनिट प्रोनाउंस ओनली. अदरवाइज तो बहुत सारे हैं. हाँ, बोलो बेटे. नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा ऋषिता? अनम्यूट करो. समझ नहीं आ रहा क्या? कौन सा indefinite pronoun? Tom and I tried the roller coaster, but nobody else wanted to go on it because they were scared. Scared तो पता है आप सबको कि डरना होता है, पर ये बताओ कोई भी नहीं जाना चाह रहा था, तो इसमें indefinite कौन सा है? बताओ. I can't hear you. You can write on chat. कुछ तो प्रॉब्लम हुई है. I can't hear you. आपने अनम्यूट किया है, but I can't hear you. Write on chat which are the and next sentence में भी कौन सा वाला indefinite pronoun है, and उनको हमने किसके नीचे लिखना है? people के नीचे या things के नीचे या place के नीचे? Write in the chat box. Write in the chat box. तब तक मैं आरव को बोलती हूँ अगले 2 सेंटेंस पढ़ेगा, फिर आप भी पढ़ना और बताएंगे. चलो आरव, रीड द नेक्स्ट 2 sentences. Arav, read after the name. We from. We could not decide because everywhere smelled so good. Finally, we sat down to eat pizza and talk about the fun day. Very nice. So क्या हुआ? What couldn't they decide? मैम, उनको इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम क्या खाएं. तो लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया. वो लोग पिज्जा शॉप पे बैठे और पिज्जा खाते खाते वो अपने फन डे के बारे में बोलने लगे, बातें करने लगे. वेरी नाइस. ओके, सो इसमें इन 2 सेंटेंसेस में कौन से हैं? हाँ, ओके, 1 मिनट. हाँ, ऋषिता से पूछते हैं पहले, उसको पिछले वाले 2 पता चले. हाँ ऋषिता बोलो. Ma'am, somewhere हाँ, or nobody
nobody and somewhere. कहाँ कहाँ पे लिखेंगे somewhere और nobody हम? somewhere places में और nobody people में. Very good. Somewhere. इसमें मेरे बहुत गंदा लिखा जाता है जब मैं इस पे करती हूँ somehow. Somewhere nobody. आप लोग लिख रहे हो ना, अपना टेबल बना रहे हो? Okay. Now, Arav, tell me in your 2 sentences, did you find any indefinite pronouns? Yes, ma'am. Which one? Everywhere. Where should I write? In people, things or places? Everywhere को कहाँ पे लिखूं? People में, things में या places में? And places. Okay, so everywhere. Very good. Everywhere. और कोई है क्या इसमें? नहीं है ma'am. और कोई नहीं है? ओके. पर इस एक चीज बताओ मेरे को, इनमें हमने और बहुत सारे प्रोनाउंस देखे, जैसे ही, पर्सनल प्रोनाउंस है ना, फिर वी, ये भी पर्सनल प्रोनाउन, फिर से वी, पर्सनल वी, हम पर्सनल प्रोनाउंस तो बहुत ही, देयर, ओके, देन आई, वी, कितने सारे प्रोनाउंस हैं इसमें, वी, okay, so there are always, whenever we read anything, there are many pronouns all over the place. Chalo, so ye exercise, everybody has written all this. Have you identified the pronouns and written them in your table? Give me a thumbs up if you've done it. Then we'll go to the next exercise. Arav has done. Rishita and Furkan, have you written down all the pronouns? Indefinite pronouns, I mean. Have you written them? कुछ बोल. आधा घंटा बचा है तो. अरे नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी है. ऐसे ही नहीं है सिर्फ कहूट. पिछली बार आप आए नहीं थे, हमने गेम खेली थी, आप थे ही नहीं. देखा, मिस हो गया आपका गेम वाला पीरियड, जिस दिन हमने गेम खेली थी. हाँ, लास्ट टाइम हमने कहूट नहीं, वी प्लेड अ गेम बट यू वर नॉट देयर. अच्छा चलो, नेक्स्ट. नाउ फुरकान रीड. फुरकान रीड. नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या? कंप्लीट द, नहीं बेटे, ऑलवेज रिमेंबर यू शुड रीड द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट, कि क्वेश्चन में हमने करना क्या है वो सबसे पहले पढ़ना चाहिए, ताकि समझ आए हमें क्या करना है. पढ़ो, ये क्या लिखा है? Complete the sentence with the सेंटेंसेस words नहीं है, from सेंटेंस नहीं है, सेंटेंसेस. क्या है ये? sentences. हाँ, तो हमेशा ये एस को याद से पढ़ना चाहिए. ओके, पढ़ो आगे. With the words from the box. वेरी गुड. अब बॉक्स में कौन से वर्ड्स हैं? मम्मी. Anyone, anywhere, nothing, everything, someone, nowhere, नोवेयर, something, नोवेयर. nowhere, something, everybody. वेरी गुड. अब ये वाले सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं. नाउ रीड द, तो आपने क्या करना है, इनमें से कौन सा इनके फिल इन द ब्लैंक्स में फिल होएगा वो लिखना है, राइट? सो नाउ डू रीड द फर्स्ट सेंटेंस. I have that to do today. I am free. हाँ, मतलब मैं फ्री हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ है या कुछ भी नहीं है करने के लिए. अगर फ्री हूँ तो मेरे पास कुछ करने के लिए होगा कि नहीं होगा? बताओ. नहीं होगा. तो नहीं होने के लिए हम कौन सा वाला इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करेंगे? एनीवन, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग या एवरीबडी?
कुछ नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब होता है? इनमें से कौन सा? अब कोई चीज ही है कि करना है अगर काम तो कोई चीज होएगा। तो हमने कौन से आइडेंटिफाई? हाँ, वेरी गुड। तो हमने नथिंग बोला। थिंग है तो फिर नथिंग, क्योंकि मैं फ्री हूं इसलिए नथिंग होगा। नेक्स्ट ऋषिता। रीड। Is डैश। Dash is very excited about this film. तो क्या होगा? बताओ। Everybody वेरी गुड, एवरीबडी। एवरीबडी, गुड। नेक्स्ट आरव। Yes, ma'am. I went to Dash this summer. या तो मैं किसी जगह का बताऊंगा या तो मैं कहीं गया नहीं होऊंगा तो वो बोल रहा हूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? बोलो। आई वेंट। ये ध्यान रखना कि सेकंड क्वेश्चन में हम एवरीबडी का ई कैपिटल से लिखेंगे। एवरीबडी। हाँ, बताओ आरव। आई वेंट डैश दिस समर, तो जगह का होगा। दैट मीन्स हमें नोवेयर। वेरी गुड, आई वेंट नोवेयर दिस समर। नेक्स्ट वाला जल्दी से 3 और कर लेते हैं, फिर बाकी के 2 आप लोग बाद में करना क्योंकि एक और एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, शाबाश, जल्दी से बताओ। फुरकान। Yes, ma'am. Would you like? Would you like Dash to eat? Question sentence है। Would you like? Would you like? अब ये देखना कि क्वेश्चन सेंटेंस में हम क्या क्या यूज करते हैं, वो ध्यान रखना। चेक करो अपने टेबल में जो बनाया था पहले। ओके, हमने अभी एक टेबल बनाया था। क्वेश्चन वाले में कौन सा एक तो एवरी हम यूज करते हैं क्वेश्चन वाले में, है ना। ये देखो, क्वेश्चन वाले में हम एवरी यूज करते हैं और क्वेश्चन वाले में हम एनी यूज करते हैं। अब हम कुछ पूछ रहे हैं तो हम सारा कुछ का तो पूछ नहीं रहे होंगे। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? वुड यू लाइक? किसी चीज की बात कर रहे होंगे। हाँ, पर वो तो इधर दी नहीं है। Like everything to eat. एवरीथिंग। वुड यू लाइक एवरीथिंग टू ईट? और अगर हम सम बोलेंगे तो क्या होगा? चलो मैं इधर अभी Something. हाँ, समथिंग भी बोल सकते हैं, मगर उन्होंने तो बोला क्वेश्चन सेंटेंसेस में हमारा सम नहीं होता है। राइट? क्या लिखा है? आप अपनी कॉपी पे पढ़ के बताओ। सम कौन से वाले क्वेश्चंस में यूज होता है? सम कौन से वाले में होता है? कौन से टाइप के क्वेश्चन उसमें होता है सम यूज? हमने लिखा था ना यहाँ पे, ये देखो, हमने यहाँ पे लिखा था सम कैन बी यूज्ड ओनली इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। मगर अगर क्वेश्चन सेंटेंस है तो हम या तो एनी यूज करेंगे या एवरी करेंगे। राइट? ये दिख रहा है ना, या हम एवरी करेंगे या हम एनी करेंगे। Yes, sir. है ना? तो अब हमारे पास तो एनी है ही नहीं, इसलिए हम, क्योंकि क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है इसलिए हमने एवरीथिंग लिखा। ओके, ये समझ आ गया ना? तो ये एवरीथिंग इज करेक्ट। नेक्स्ट ऋषिता, नंबर 5। I डिड यू? नंबर 5। Did you see Dash famous at the party? अब फिर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए हम क्या? हाँ,
या आपके जो स्क्रीन है ना, हाँ. जिस पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, वो उसकी पिन किसी ने तो डाउन कर दी है. क्या आप कर दिया? पिन डाउन कर दिया. कैसे? पता नहीं. पिन डाउन कर दिया मतलब क्या होता है? What does that mean? मैं वो छोटी The recording and I forgot to start it. So, last के 2 sentences all of you will do yourself. Okay? I think recording में 6th और 5th sentence भी miss हो गया somehow, but you can all do it. Doesn't matter. Now we'll go to activity 3 and I'm asking Furqan to start with the activity 3. पढ़ो activity 3 फुरकान. अब हमारे पास कोई बॉक्स नहीं है, ओके? पर हमें ध्यान रखना है, अपने टेबल सामने रखना उसके बाद, बट फर्स्ट रीड द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्टिविटी. पढ़ो. अच्छा चलो आरव को पढ़ने दो इंस्ट्रक्शन, देन लेट अस सी वेदर ही अंडरस्टैंड्स इट. पढ़ो. complete the questions with the correct indefinite pronoun. Then discuss the question with your teacher and partner. Or partner. Okay. So now complete them. First, बताओ, read the first sentence, Arav. We'll go on the reverse direction now. Everyone surprised you with a gift. Who was it? Question sentence. So remember, question sentence में हम या every को use करेंगे, या हम no करेंगे, या हम some करेंगे. नहीं, some नहीं. और कौन सा करते हैं? या हम every करते हैं question sentence में, या हम any करते हैं. No और some हम सिर्फ positive sentences में करते हैं. मतलब तो any negative sentence को use करते हैं. हाँ, any नहीं कर सकते इसका मतलब यहाँ पे. या हम everyone कर सकते हैं, या हम anyone कर सकते हैं, right? या Yes. तो बताओ क्या होगा? या has nobody. अभी पूछ रहा है who was it, कि अगर ये क्वेश्चन इसके बाद who was it है, that means कि किसी ने तो किया होगा, है ना? बेटे somebody तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही होगा, some और no सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में होगा. क्वेश्चन सेंटेंसेस में every या any होगा. Surprised you with a gift to as it. Who was it? फिर से बोलो, क्या बोला? has Had someone ever No. surprised? not someone. someone हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है. देखो टेबल, क्वेश्चन सेंटेंस में या एवरी या एनी होगा, तो या एवरीवन होगा या एनीवन होगा. कौन सा लिखूं? देखो टेबल. ये देखो ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, या हम क्वेश्चन सेंटेंस कर रहे हैं या एनी होगा. एनी को हम क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं. एवरी को हम क्वेश्चन में भी करते हैं, नेगेटिव में भी करते हैं और पॉजिटिव में भी करते हैं. अब ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इसका मतलब है कि ये या तो एवरी होगा और या ये एनी होगा. और क्योंकि पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो अपना टेबल देखो, पर्सन में या एवरीबडी या एवरीवन या एनीबडी या एनीवन. अब बताओ मुझे, ये मैंने ऐसे ही थोड़ी ना वो टेबल लिखवाया कि आप लिख लो और भूल जाओ. उसको रेफर करो व्हाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस. हैज क्या आना चाहिए? Had some. No, that is for a positive sentence. Okay, mute. Yes, Rishita, your turn. What should we write? I'm telling you and you're not listening. Arav, मैं ऑलरेडी आपको आंसर बता चुकी हूँ. लेट मी सी किसने सुना. Yes, Rishita, what should it be?
ऋषिता बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ, म्यूट करो आरव। यस ऋषिता, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम Has dash ever surprised you with a gift? Who was it? क्या किसी ने आपको कभी सरप्राइज किया है गिफ्ट देके? कौन था वो जिसने आपको सरप्राइज किया? तो क्या लिखेंगे यहाँ? anyone. वेरी नाइस। सो एनीवन, बिकॉज ये क्वेश्चन है। मैम बोल चुका हूँ, नहीं, आप बार बार समवन बोल रहे हो। बोल चुका हूँ मैं। नो, यू सेड समवन एवरी टाइम, यू डिड नॉट से एनीवन। देयर इज अ डिफरेंस। मैम बोला मैं। अच्छा ठीक है, अगर बोला तो आई एम सॉरी, बट राइट इट डाउन। नेक्स्ट, अगर बोला तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट मैंने तो समवन ही सुना आपसे। बट अगर आपने एनीवन बोला था और मेरा मिस हो गया तो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। अब लिख लो। चलो ऋषिता, रीड द सेकंड क्वेश्चन। पर Is there dash you want to learn how to do what? again the same question sentence. Is there, क्वेश्चन सेंटेंस में या एनी यूज होएगा या एवरी यूज होएगा, इतना ही है। हाँ, Anything. वेरी गुड, एनीथिंग। चलो नेक्स्ट, फुरकान, थर्ड क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन है। Can you think of dash one to do this week? वीकेंड। हाँ, इस वीकेंड पे कुछ अच्छा सा फन चीज आप सोच सकते हो थे करने के लिए, तो क्या बोलोगे? अगेन क्वेश्चन सेंटेंस, या एनी या एवरी। कैन यू थिंक ऑफ? हाँ, Everywhere. वेयर बेटे कहाँ? अभी हम कह रहे हैं कोई फन चीज, तो विच, उसमें दैट मीन्स कौन सा आना चाहिए इसमें? चलो अभी म्यूट करो, अभी आरव से। एनी वन तो बेटे पर्सन के लिए है, हम चीज की बात कर रहे हैं, तो चीज के लिए क्या यूज करते हैं? थिंग के लिए क्या यूज करते हैं? एनी, Everything. एवरीथिंग कैसे बोलोगे? कैन यू थिंक ऑफ एवरीथिंग फन टू डू दिस वीकेंड? नहीं, कोई चीज अच्छी करने के लिए बोलेंगे ना, तो कोई एक आध चीज। एवरीथिंग तो मतलब सारी चीजें, हम एक चीज की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा? कैन यू थिंक ऑफ? आरव आप बताओ, आरव टेल मी। Man, can you think dash fun to do this weekend? Can you think? चीज की बात कर रहे हैं। Can you think something? फिर से आप सम पे पहुंच जाते हो। मैं आपको बार बार, आप वैसे ही समवन कर रहे थे। जब हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस में या एवरी यूज होएगा या एनी यूज होएगा, तो एवरी तो हो नहीं सकता है क्योंकि हम एक आध चीज की बात कर रहे हैं, तो क्या यूज होएगा? एवरी नहीं हो सकता, तो आप क्या बोलोगे? एनी यूज हो। हाँ, Any भी नहीं use. एनी तो होता है यूज, एनी तो सुपर से हम एनी ही यूज। हाँ हो, Anything. हाँ एनीथिंग। अब इसको समझ आया। पहले कह रहा है मैंने यही बोला था, अभी भी नहीं समझ आया था, अब समझ आया। एनीथिंग। फुरकान समझ आया? फुरकान समझ आया? Yes, ma'am. पक्का? गड़बड़ करते हो। चलो नेक्स्ट, ऋषिता।
नहीं, अभी आरव को पढ़ने दो नेक्स्ट, ये तो फुरकान की टर्न में उसने बोला था। आरव पढ़ो। हाँ। Have you gone dash interesting रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब क्या होता है? सुनो मेरी बात, बीच में जब मैं बोल रही हूँ। अभी हाँ अभी क्या अभी हाँ, वेरी अभी गुड, क्या अभी वेरी गुड। हाँ recently where did you go? हाँ, तो अगर दोबारा ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब सारी जगह की बात नहीं कर रहे होंगे, किसी एक जगह की बात कर रहे होंगे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ? बताओ। हाँ बताओ, आप ही ने बताना है। Gone anywhere वेरी गुड। एनीवेयर इंटरेस्टिंग रिसेंटली। वेयर डिड यू गो? कहीं अच्छी जगह पे, क्योंकि अब जगह की गॉन, तो हम किसी जगह ही जाएंगे, तो एनीवेयर। वेरी गुड। नेक्स्ट ऋषिता। just dash in your class like the same hobbies as you does anyone? वेरी नाइस, क्योंकि अब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हॉबीज तो किसी पर्सन की ही होगी। सो डज एनीवन इन योर क्लास लाइक द सेम हॉबीज एज यू? आपकी जैसी हॉबीज किसी और की हैं? ये 6th वाला पढ़ो फुरकान। मैम सेवेंथ वाला क्या पढ़ एवर Ever बीइंग। did that where you could use your phone, what did you do? हाँ, कि ऐसी किसी जगह गए हो जहां पे यू कुडंट यूज योर फोन। तो अब ये क्या है? ये नेगेटिव भी है ना? कुड नॉट यूज योर फोन, और ये क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं मगर नेगेटिव पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में भी हम क्या बोलते हैं, किस चीज़ का यूज़ करेंगे?